स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के उर्दू घर में मौजूद हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर काफ़ी तादाद में अपने स्टूडेंट्स ने एग्जीबिशन लगाई है। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नांदेड़ सिटी में एक उर्दू स्कूल्स के लिए एग्जीबिशन लिए जा रही है, जिसमें नांदेड़ के तमाम उर्दू स्कूल ने पार्टिसिपेट किया। इस एग्जीबिशन में बच्चों ने साइंसी और रोबोटिक के बहुत सारे मॉडल्स पेश किए। आइए इस मॉडल्स में बच्चों ने क्या क्या बनाया है और इस एग्जीबिशन में क्या क्या है वो सिर्फ हम देखेंगे। Assalamualaikum. My name is Zarmin Mehdi. This is my team. I'm Sarah. I'm Muslim. I am representing the Smart Agriculture project. This is a farm security greenhouse hydroponics. Farming is the backbone of many economies, provide food, resources of millions. However, farmer often faces numerical challenges such as a theft, animal and even trespassing on their property. This issue can lead to be scientific loss. And IMX setup, security setup, LTR, laser technology with the help of protect the farm. Yeah, process like this. Agriculture is a fundamental part of human life. It provides food, fiber and many other essential resources, however, with the growing chances climate change. And this is a greenhouse. It is made up of it is a structure made up of clear plastic design to create a controlled environment for growing the plants. Inside the greenhouse there is an exhaust fan is available. When greenhouse becomes hot, exhaust fan can help to expel the warm inside the greenhouse, and it's maintain the temperature of the greenhouse. This is hydroponics. The hydroponics is a revolutionary method of growing plants without using a soil. Hydroponics is an innovative technique that allows us to grow plants with the help of nutrient-rich water solution, offering a alternative technique to traditional farming. Traditional farming method often require. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. I am Mohammad Sadiqul Amin and my friend Mohammad Hashir and Mohammad Akram are here to represent. We are representing a working model of DNA. What is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid present in the nucleus of the cell. DNA is firstly discovered by the scientists Watson and Crick in 1953. And the amazing fact about DNA is the DNA of each person is unique. As you can see, DNA model consists two strands. Both are coiled around each other. Hence, it is called double helix structure. It contains alternating sugar phosphate group and 4 nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine. Adenine and guanine are collectively called as purines. Cytosine and thymine are collectively called as pyrimidine. These are hydrogen bondings which connects adenine with thymine, cytosine with guanine. DNA rotates in clockwise direction. Let's see how it works. Assalamualaikum. My name is Ansari Amara Rahat and we are from Accra Urdu High School. Today we are going to explore human body. Let's start with our skin. Our skin protects us from external damage regarding body temperature, sense, touch, feel. Our muscles help us to walk, sit and to posture our body. Did you know that how many muscles in our body? We have over 640 muscles in our body. The circulatory system is made up of blood vessels that carry over the blood to the heart. Arteries carry blood to the veins, carry it back. Lungs locate in thoracic area and helps to breathe. The heart is pumping blood throughout the body and divide into 4 chambers: left artery and right artery, left ventricles and right ventricles. The brain is our control center located in the cranium, divided into cerebrum, cerebellum and
brain stem. Our stomach help us to digest food. Pancreas help us to control blood sugar. Large intestine help us to remove waste. Small intestine help us to absorb nutrients, hormones. Kidney help us to remove waste like urine. Appreciate the incredible machine that is our body. Thanks for exploring us. अस्सलामुअलैकुम, वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 फ्रॉम मदीनातुल उलूम हाई स्कूल। हमारे प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट का नाम है पानी से फ्यूल बनाना। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है बेवक्त बारिश होने से, और किनारे के शहर डूब रहे हैं और दोनों पोल पर का बर्फ़ पिघल रहा है। और अगर इन सब का हल निकालना हो तो हम सबको मिलकर एक काम करना पड़ेगा, वो है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करें, कोई और फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा। हमारे प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं एक बेहतर फ्यूल है हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। आप देखते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। दुनिया में लगभग 70-75% पानी मौजूद है, जिसकी वजह से हम बनाएंगे बिजली। और बिजली की मदद, ये देखें, आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल है, और ये जो है ना, हम अगर पानी में अगर इलेक्ट्रोड डाल देंगे तो ये जो साइड वाला है, ये फर्स्ट वाला ये है पॉजिटिव, और वो लेफ़्ट वाला है वो है नेगेटिव। जो हमने पॉजिटिव है ना उसमें ऑक्सीजन, और नेगेटिव में है हाइड्रोजन गैस को जो है हमने पंप में भर कर देना है। इसमें क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोल पंप में और फैक्ट्रियों में, ये फैक्ट्री है इसमें। और जो ऑक्सीजन गैस है उसे हमने देना है हॉस्पिटल में फॉर अ पेशेंट। ये है ना हार्मफुल गैस नहीं है, ये यूज़फुल गैस है पेशेंट के लिए भी, और ये व्हीकल्स में गैस जो है काम आती है। और ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को समंदर का बहुत किनारा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं, और इंडिया में सनलाइट भी बहुत है, इसलिए ये प्रोजेक्ट इंडिया में मुमकिन है। कम खर्चे में आपको मिलेगा फ्यूल, और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। और कुरान में सूरह वाक़िया में फरमाया गया है अफ़रा आमलतु अल्लज़ीना तस्बुरू, क्या आपने इस पानी पर गौर किया जो आप पीते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत दी है पानी, जिस पर हमने कभी रिसर्च ही नहीं की। पानी हम सिर्फ पीने के लिए और कोई चीज़ धोने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और कुरान में ये भी कहा गया है लौ नशा अल्लाहु अज्जजा माफ़िल, अगर हम चाहें तो इस नमकीन पानी को भी बदल लें अगर तुम शुक्र करोगे तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मदीना स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये है अपने करंट के ऊपर, क्योंकि ये करंट से आदमियों की जान हो जाती है, इसलिए उनकी जान नहीं जाना, इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाने वाला है। ये प्रोजेक्ट काम कैसा करता, अगर ये दो वायर आपस में टच हो गए तो ये लाइन ऑफ हो जाती है, और अगर ये वायर अगर नीचे गिर भी गया तो ये लाइन ऑफ हो जाती है। और अगर कहीं पर आँच भी लग गई तो ये लाइन ऑफ हो जाती है पूरी। इसका बनाने का मकसद ये है कि लोगों को आँच नहीं लगना, लोगों को करंट नहीं लगना, बनाने का मकसद यही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैदान अब्दुल आला, आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। टुडे आवर प्रोजेक्ट इज़ ग्रीन हाउस। ये जो ग्रीन हाउस है, मतलब प्लांट्स जो रहते हैं, प्लांट्स सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते, तो इसको बोलते हैं अपन फोटोसिंथेसिस। और अब प्लांट्स अपना खुद से खाना बनाते, उसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मतलब जनरली कोल्ड एरिया में, कश्मीर में, मतलब प्लांट्स अगर सन से ज़्यादा एनर्जी ले लिए तो प्लांट्स मर जाएंगे। तो प्लांट्स मरने के कारण अपने को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, अपने को अच्छा फूड नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जो ग्रीन हाउस है ये सन से प्लांट को प्रोटेक्ट करती, और जितना सन से एनर्जी प्लांट लेता उतना जितने एब्जॉर्ब कर सकते प्लांट्स, उतना सन ये जो ग्रीन हाउस की जो शीट है वो उसको उतना दे सकती। और वो जो प्लांट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते वो प्लांट्स उसको कन्वर्ट करते फिल्टराइजेशन में, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में अच्छा कन्वर्ट करके फूड करके एनिमल्स को, बर्ड्स को और अपन जैसे पीपल्स को देते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ शेख साइमुल हक। I am from 8th class and from Radiant Institute of Foundation Studies। तो हमारे प्रोजेक्ट की थीम है जो है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रोन। तो हम आपको इसके अंदर जो मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ वो हम बताने वाले हैं आपको, और ये हम नहीं बताएंगे, इसे सिप्तेन इसे एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम स्टडी इन 8th क्लास एंड फ्रॉम रेडियंट इंस्टीट्यूट। और हम ये जो ड्रोन है इसके अंदर 300 mAh की एक बैटरी यूज़ वाली है। और जो सर इसका बेस है
वो सिलिकॉन से बना हुआ है। अगर कुछ हवा में उड़ते उड़ते ड्रोन क्रैश हुआ तो कुछ टूटना उठना नहीं बोल के। और जो सर इसके पंखी है वो भी सिलिकॉन से बने वाले हैं। अगर किसी ने उंगली किसी ने डाला तो कटना नहीं बोल के। इसके फ़ायदे आपको फुरखान बताएं। मत दीजिए, वॉलंटियर से दरख्वास्त है कि वो दरवाज़ों की सर इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे का इससे एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट कैसे होगा कि जैसा कि आजकल के जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं और उसके जो ब्लेड्स रहते हैं वो भी बहुत शार्प रहते हैं। और जब बच्चे उसको खेलते तो उनके फेस पे लग जाता, हाथ पे लग जाता, उससे मार लगने का डर लगता। लेकिन हमने जो बनाए तो इसके जो ब्लेड्स है ये सिलिकॉन के, जिससे बच्चों को मार नहीं लगने वाला। और ये इसका बेस है वो भी सिलिकॉन के, नीचे गिरने से मार नहीं लगेगा। और इसका इन द फ्यूचर फ़ायदा ये है कि समझो आप कोई फिल्म की शूटिंग चल रही तो आप कैमरामैन को जो हेलीकॉप्टर में बिठा के ऊपर से शूट कराते तो अब कैमरामैन के नीचे गिरने के रिस्क रहता। तो अब अगर से समझो अपन इसके नीचे एक कैमरा लगा देंगे तो उससे अपन इसके शूट कर सकते हैं। और समझो तो इसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले सिलिकॉन बेस आ जाएगा जो टूटा नहीं, वो बताया आपको। फिर RC ड्रोन किट आ जाएंगी अंदर एक, जिससे ड्रोन चलेगा। इसके बाद 300 mAh की बैटरी रहेंगी, फिर 4 DC मोटर रहेंगे और 4 LED लाइटिंग। बस SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज साइंस एग्जीबिशन जो 8वीं 9वीं 10वीं के क्लास के बच्चों का था, ये बहुत ही साइंटिफिक तरह से था। कुछ मॉडल तो इतने इनोवेटिव आइडिया से बनाए वाले थे जो आगे चलकर वो बच्चे डेफिनेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ कला गुण है और साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लेकिन वो एक्सपोज करने का जो माध्यम है आज ये SIO के वजह से मालूम हो गया कि इन बच्चों में भी कुछ खासियत है और वो खासियत यहाँ आपने मॉडल के जरिए बता दिए है। और जो ये प्रयास जो रहा ये संगठन की वजह से जो करे तो डेफिनेट बहुत अच्छा रहा। ये बच्चे आगे चल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि अंधविश्वास के खिलाफ भी उन्होंने काम अच्छी तरह से करेंगे। आज नांदेड़ में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO की जानिब से मुस्लिम तलबा के लिए जो साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन का अहतमाम किया गया था, मैं सबसे पहले SIO को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया है। और काबिल मुबारकबाद है वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज हिस्सा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये मुकाबला है। बच्चों ने बहुत जहानत के साथ ज़बरदस्त चीज़ें, नई चीज़ें तैयार की हैं और देखने पर ऐसा मालूम होता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इनका फ्यूचर जो है ब्राइट है और यकीनन ये साइंटिस्ट भी बनेंगे। और बाद बच्चे जिन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ें बनाई है उससे अंदाज़ा होता है कि ज़रूर ये IAS पास करेंगे और कलेक्टर वगैरह बनेंगे। तो काबिल मुबारकबाद है SIO। और मैं मिल्लत के इन नौनिहालों से और उनके स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स और पेरेंट्स मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा वो भी इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और ज़बरदस्त कामयाबी के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। बहुत बहुत